हेलो हेलो तनु, आवाज आ रही है आप लोगों को? आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस सर। कल एक क्वेश्चन लिखाए थे कि कैसे हम लोग न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें। एडमिशन चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना? 2/7/2020 accountancy topic is admission. लिख लीजिए कॉपी में, admission of a new partner. Dear children, admission of a new partner with new terms and conditions brings the situation of reconstitution. इसी को reconstitution कहा जाता है. Question may be asked from you, what do you mean by reconstitution? Reconstitution means when the partnership form is to run with the new terms and conditions among the partners due to changeover in the profit sharing ratio, due to admission of a new partner, due to retirement of a partner, or due to death of a partner. Terms and conditions among the partner changes, and that changes brings reconstitution in the partnership form. इसी को reconstitution of the partnership form कहते हैं. लिख लो, reconstitution of partnership form. Reconstitution of partnership form means the form is to run. Good afternoon, sir. To run RUN its operation. To run its operation with new terms and conditions. With new terms and conditions due to change in the old profit sharing ratio, change in the old profit sharing ratio into a new ratio, comma, admission of a new partner, admission of a new partner with the consent of all partners, with the consent of all partners, even retirement and death of a partner, even retirement and death of a partner creates situation of reconstitution, creates situation of reconstitution.
And at the time of reconstitution, following activities are to be completed by the accountant. Following activities will be completed by the accountant. Number one is to find out new profit sharing ratio. New profit sharing ratio and sacrificing or gaining ratio. Sacrificing and gaining ratio of all the partners are completed. निकाल के बनाना होता है, बताना होता है। दूसरा है to compensate sacrificing partner goodwill is credited to them on account. और थर्ड है to prepare revaluation account to reassess the value of assets and liabilities. Value of assets and liabilities increase and decrease. Increase and decrease profit or loss is credited and debited
So old partners in case of admission. अभी हम लोग एडमिशन पढ़ रहे हैं in case of admission. दूसरा काम है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए at the time of the reconstitution of the fund. Revaluation of what? Revaluation of revaluation of assets and liabilities. जिस assets का value increase होता है वो increase value credit side में लिखा जाता है revaluation. क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स के आधार पर बनाया जाता है। तो जिस एसेट का वैल्यू बढ़ता है, जितना से बढ़ता है वो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है और जितना जिससे घटता है वो डेबिट साइड में लिखा जाता है। और ठीक उसका उल्टा होता है लायबिलिटी में कि अगर लायबिलिटी घटती है तो फर्म को प्रॉफिट होता है। लायबिलिटी 10,000 की जगह 9,000 देना है तो 1,000 का प्रॉफिट हुआ। लायबिलिटी घटने से प्रॉफिट होता है और एसेट्स बढ़ने से फर्म को प्रॉफिट। तो लायबिलिटी का वैल्यू अगर गिरा हुआ कम होता हुआ दिखाई देगा तो जितना से होगा उसको हम लोग क्रेडिट में लिख देंगे और लायबिलिटी बढ़ेगी तो हम लोग डेबिट में। ये दो बात बहुत सावधानी से ध्यान से याद कर लेना है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द क्रेडिट साइड, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द डेबिट साइड इन द रिवैल्यूएशन. Similarly, decrease in the value of liability is recorded at the credit side in the revaluation, and increase in the value of liability is recorded at the debit side in the revaluation. Revaluation account में और भी लिखा जाता है अनरिकॉर्डेड एसेट्स। पिछले साल कुछ छूट गया, कुछ ऐसा एसेट्स जो इस साल के क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक एसेट था, एक टाइपराइटर था, एक कंप्यूटर था जिसका वैल्यू एसेट्स में नहीं लिखा गया, छूट गया था। तो ऐसे छूटे हुए एसेट्स को हम लोग क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट में जरूर लिखें। अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर रिटेन एट द क्रेडिट साइड एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड एट द डेबिट साइड इन द रिवैल्यूएशन। वो सब हम लोग जब बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे। और चौथा जो हमको बनाना होगा एज एन अकाउंटेंट, ये 8 नंबर प्रश्न आता है, सबसे ज्यादा नंबर इसी में है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन फ्लक्चुएटिंग ठीक है। और इसके बाद अंत में हम लोग फ्रॉम बैलेंस शीट और बैलेंस शीट as on the date of new form. बैलेंस शीट में नया पार्टनर जो कैश लेके आता है, कैश और कैपिटल
and goodwill brought by the new partner, brought by the new partner is added at the asset side the previous cash balance the previous cash balance इतना काम करना होगा न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करना होगा गुडविल से जो नया पार्टनर लेके आया है वो देगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट साइड में लिख देंगे उनके कैपिटल अकाउंट और जो लाने वाला पार्टनर है उसके कॉलम से हम लोग डेबिट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे उसका जो प्रॉफिट होगा मान लीजिए कि लाभ ज्यादा है लॉस कम है तो जो डिफरेंसिंग अमाउंट आएगा वही प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कहा जाता है दिस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट सारे ओल्ड पार्टनर्स को उसका बेनिफिट मिलता है उसको हम लोग दे देंगे उनके ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिलेगा न्यू रेशियो में नहीं ओल्ड रेशियो उसके बाद बैलेंस शीट बनाना होगा रिकंस्टिट्यूटेड फंड का तो सारे एसेट्स को हम लोग लिखेंगे जिसका वैल्यू बढ़ा है उसको बढ़ा के लिखेंगे जिसका घटा है उसको घटा के आप जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइएगा तो उसको तो देखिएगा कि किसका किसका वैल्यू बढ़ा किसका किसका वैल्यू घटा जिसका बढ़ा उसको बढ़ा के लिखिए जिसका घटा उसको घटा के लिखिए लायबिलिटी में भी अगर घटा है तो घटा दीजिए बढ़ा है तो बढ़ा इतना तो करने आपको आता ही है आसान और उसके बाद कैश जो लेके आएगा चाहे वो कैपिटल के लिए लेके आवे या गुडविल के लिए लेके आवे तो जो पोर्शन के बैलेंस शीट में कैश दिया रहेगा उसको ऐड कर देना ठीक है उसको ऐड कर देना है अगर गुडविल पार्टनर ले जाता है तो जितना ले जाता है उसको माइनस कर देना और इस तरीके से फिर हम लोग बैलेंस शीट बना लेंगे सारे एसेट्स को लिखेंगे सारे लायबिलिटी को लिखेंगे फिर सारे पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीधी आया है उसको कैपिटल के रूप में यहाँ लिख हो जाएगा उससे बन जाएगा ठीक है कोई दिक्कत यदि प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कुछ दिक्कत है तो बोलो अब ये देखना है कि कैसे हम लोग न्यू रेशियो निकालें न्यू रेशियो निकालना होगा न्यू रेशियो निकालेंगे तभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा इसलिए उसको मैं अब मिटाता हूँ मिटा दूँ इसलिए आप लोगों ने
अब है कि if new partner takes in absolute from the firm, not from the firm. पहला केस है if new partner लिखे इसको new partner takes his share in absolute ABSO LUTE from the firm. From the firm, not from the partners. Not from the partners. क्वेश्चन में लिखा रहता है कि पार्टनर नया पार्टनर जो आया है वो कितना शेयर उसको मिलेगा, कितना शेयर देना है, तो उसके लिए उसी हिसाब से हम लोग डील करेंगे। क्वेश्चन लिखिए A, B and C were partners. A, B and C. A, B, C. तीन पार्टनर पहले से थे, वे आर पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनके बीच का था 3:2:1। 3:2:1। इसको हम लोग 3:5 लिखिए, 3/6, 2/6, 1/6 भी लिख सकते। ठीक है, तीनों का शेयर जोड़ करके डिनोमिनेटर क्रिएट कर दिया, तीनों को जोड़ 3:5 कर दीजिए। अब देखना है कि नया पार्टनर कितने के लिए आता है, उसको कितना देता है। लोग कहता है he was admitted for 10% share. He was admitted for 10% share. ठीक है, 10% का मतलब होता है 10/100 आराम। और अगर इसको और छोटा करना चाहें तो काट दीजिए, 1/10 हो जाएगा। मतलब he was to be given 1/10 शेयर। इससे फर्म से ऐसा रहेगा 1/4, 1/6, 1/5, 1/10। इसका मतलब वो फर्म से ले रहा है, किसी एक अकेला पार्टनर से नहीं। तब इसके लिए फॉर्मूला है कि हमको रिमेनिंग शेयर निकालना हो। तब उसके लिए क्या करते हैं, लेट टोटल शेयर ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1। मान लीजिए कि पूरे फर्म का कुल 1 शेयर है, सो रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू remaining share is equal to 1 minus 1/10 or 10 minus 1/10 or 9/10।
इतना कर सकते हैं। ये रिमेनिंग शेयर निकल गया 1/10 देने के बाद जो फर्म के पास शेयर बन गया है वो 9/10 बन गया। अब इसमें से 9/10 में से पुराने पार्टनरों को उनके ओल्ड रेशियो में देना है। ए, बी और सी ये पुराने पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर। इनको उससे 3/6 मिलेगा, बी को 2/6 मिलेगा और 1/6 मिलेगा। 9/10 का 9/10 का मतलब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। देखिए is new share is equal to 9/10 into 3/6. इनका रेशियो है, तो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करो 27/60 आ जाएगा। और बी का न्यू शेयर इज इक्वल टू 9/10 ही कर मिलेगा, वही रिमेनिंग है आपको 9/10 का 2/6। ठीक है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये नया शेयर हो गया बी का। और सी का न्यू शेयर इज इक्वल टू उसी में से मिलेगा इनको भी 9/10 रिमेनिंग है तो उसका 1/6 मिलेगा। तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा और 10 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा। एनपीएसआर कितना हुआ डी का देख लीजिए। उनके सेम डिनोमिनेटर में लाने के लिए इनका शेयर है 1/10 और डिनोमिनेटर है 60। तो 60 लाने के लिए ऐसा डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे ऊपर जो 60 आ जाए। तो 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, ऊपर नीचे दोनों। ठीक है, तो इसका आ जाएगा डी का 6/6। अब एनपीएसआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो NPSR is equal to 27 is to 18 is to 9 is to 6। अब इसको और कर दें, कम कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। 3 9 27, 3 6 18, 3 9 और 3 ये एनपीएसआर आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ ऑल द पार्टनर्स एबीसीडी। ऐसा बना सकते हैं आप लोग क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन दें आपको, बना दीजिएगा। ये सब बना लेंगे। हाँ, लिखिए क्वेश्चन। A and B are partners. A and B are partners. Sharing profits in the ratio of 5:3.
sharing profits in the ratio of 5:3. So C is admitted, C capital. C is admitted for 1/4 share. 10 मिनट और है, 1/4 share. Calculate new profit sharing ratio after his admission. Calculate new profit sharing ratio after his admission. जरा से इसको हटा दीजिए तो. सर आंसर 5:9:8 है. 15. 15:, yes sir, 15. 9:8. Yes sir. हाँ, सब लोगों को हो गया. तनु तो बना रही हो अनन्या? आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बन जाएगा. एक और क्वेश्चन लिखो, टाइम कम है लेकिन लिखो. A and B are partners. They admit C for 1/4 share. A and B would share in future. In the ratio सर of एक बार रिपीट कर दीजिए ना. A and B would share in future. A and B would share in future in the ratio of 2:1. Calculate new profit sharing ratio. देखो क्या अंतर है. आगे हम लोग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से देते थे रिमेनिंग का. अब नया रेशियो किया हुआ है कि आगे इन लोग इस रेशियो में शेयर करना चाहते हैं. तो जो रिमेनिंग बचेगा उसको 2:3 में बांटना होगा. मतलब 2/3 ए को मिलेगा और 1/3 बी को मिलेगा. तो कितना कितना मिलेगा मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए. रिमेनिंग निकालिए पहले. Let total share of the firm is equal to 1. So remaining share will be 1 minus 1/4.
और 4 माइनस 1/4 और 3/4, ये रिमेनिंग बचे। अब इसको 2:1 के रेशियो में दे दीजिए और दीजिए। अब फिर सी का डिनोमिनेटर इक्वलाइज कर दीजिए। Sir, 2:1:1. हाँ 2:1। एक्चुअली आता है 6:3:3। हाँ, उसको हम लोग रिड्यूस करके 2:1:1 कर सकते। कैसे करेंगे? 2/3 इंटू 3/4। ए का नया शेयर जो न्यू शेयर है, न्यू शेयर इज इक्वल टू 2/3 इंटू 3/4। 3/4 का 2/3 मिलेगा उसको, तो मल्टीप्लाई कीजिए। 3 2 6 और 4 3 12, उसका न्यू रेशियो हो जाता है 6/12। और बी का भी निकालिए। बी न्यू शेयर इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3/4। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 होगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 हो जाएगा। 3/12। और सी का शेयर है 1/4। डिनोमिनेटर उन लोगों के इक्वलाइज करने के लिए सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12 लाना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे दोनों, तो 3/12 हो जाएगा। मतलब अब इनका NPSR हो गया 6/12, 3/12 और 3/12। इसको हम लोगों ने आपने शॉर्ट किया 2:1:1। ठीक है। और लिखिए क्वेश्चन। Vision and Creation are partners. Vision and Creation are partners, sharing profits in the ratio of 3:2. They admit Amit for 1/10 share, which he takes equally from both the partners. दोनों से इक्वली लेता है 1:1, 1/2, 1/2, equally from both the partners. Calculate new profit sharing ratio. निकालना होगा कि किससे किससे कितना लेता है, अब फिर उसके रेशियो से उसको माइनस कर देना होगा, तो न्यू रेशियो निकल जाएगा। मल्टीप्लाई करके निकालिए 1/10 इंटू 1/2, नहीं मिलेगा। 1/10 का 1/2 1/20 होगा। Amit taken from Nishan 1/10 into 1/2 is equal to 1/20. फिर है Amit taken from Krishan 1/10 into 1/2 1/20. So new share is equal to old share minus share surrendered. Old share minus share surrendered. New share निकल जाएगा इसमें। So Vision's new share is equal to 3
3 by 5 minus 1 by 20 का all ratio है 3 by 3 by 5 minus 1 by 20